आई थिंक अभी और किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा है, तो हम लोग स्टार्ट कर दें क्या? पूर्वा, प्रिया? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो, बिफोर वी स्टार्ट, हाँ, जस्ट गिव मी लिटिल बैकग्राउंड ऑफ योर्स सो दैट यू नो आई वुड अंडरस्टैंड कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना है। अपूर्वा, लेट्स स्टार्ट विद अपूर्वा। Ma'am, I think financial management is all about like all related to accounts thing. अपूर्वा, आई वांट योर इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा। Okay, introduction. Hello. यस अपूर्वा, यस, गो अहेड। Okay. हम्म। So my name is Apurva, हम्म। and right now I am. What things do you want to know, ma'am? Sorry. Your class, okay, like your which paper, which class are you in? Because you know we were planning for one combined class, so I just wanted to know कि आप लोग सब दोनों सेम क्लास से हो और Yes, आपका we बैकग्राउंड। are from same class, third year. ओके, BHA राइट? Yeah, BHA. अच्छा, ठीक है, ओके। Ma'am, I think we met last. Before 2 years we met. हाँ, Faria, Apurva, and I mean you're Suman, ma'am, right? राइट। Yes. So 2 years back we met. You forget? नहीं अपूर्वा, I recognize your name, but I'm not able to recognize your face because, Okay, all right, no issues. There है would ना? be so many students. Yeah. Right, right. Okay. So yours is 304 or 205? Which paper? 30304. Okay. ठीक है. Because why I wanted to know because just one moment, huh? Hello. Good morning. Okay. So in your syllabus, like we have meaning of financial management, scope, function, importance. Then we will also be having financial statement analysis, जिसके अंदर आपका जैसे आपका ये आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या होती है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद आपका फंड फ्लो, कैश फ्लो, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस भी रहेगा। और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक इवन पर, ब्रेक इवन, सीपीवी, वर्किंग कैपिटल, राइट। उसके बाद आपका जो मार्केट्स में पहुंचेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से लाते हैं, राइट। और कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या होती है, मतलब अगर कोई बजट है, उसको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए, वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं
जैसे कि आपका फाइनेंस में डिविडेंड डिसीजन है, कैपिटल डिसीजन है, ये सब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मुझे एक बार आप लोग अपना, पूर्वा एंड श्रेया, बोथ ऑफ यू, नाउ I want to know like your schooling also, whether that is from science or from commerce, so that I would have some understanding about you. Okay. Now Apurva, just give little brief about yourself. Okay, so my name is Apurva, and I did my schooling from Maharashtra. My school name was School of Scholars, and I am from science background. Acha, now I recognize your face. Okay. Okay. And what about the other one, Priya? Hello, ma'am. Good morning. Good My name is morning. Faria. Actually, by mistake, Acha, the acha. thing got. हाँ, ठीक है. Yes, ma'am. So I'm from Kolkata, and have done my schooling from St. Joseph's Convent, and I'm from arts background, humanities. Okay, good. अच्छा, आप लोगों ने मुझसे पहले क्लास ले रखी है ना? Yes, ma'am. Used to take a management class. मैंने First Foundation year. of Management. समझ में आ गया मुझे. प्रिया कौन है समझ. Miss, that was the only class we got. After that, we did not get any class, like a proper class. You didn't ask for it then? Ma'am, what's the use, ma'am? Some teacher will come, they'll just read, just give a reading. That also was not proper, ma'am, miss. Like after that, we did not even get one proper class, to be very honest with you. Acha, then you can of course discuss these issues with your coordinator, Tawfiq and Seema. I'm sure they will help you. Maybe there can be some misunderstanding, but the intent of us, of the entire college, is to make you people understand both theoretical as well as practical knowledge. तो आप लोग जब एक्चुअली क्या है ना, आप लोग के साथ में वो ट्रेनिंग्स भी इतनी सारी रिग्रेस चलती हैं, है ना, आपको भेजते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, ताकि आप एक जॉब पर्सपेक्टिव से तैयार हो जाओ, है ना, आगे फ्यूचर में मार्केट में आपकी वैल्यू रहे, राइट. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोग क्लासेस तो बहुत अटेंड कर लेते हैं, बहुत मिल भी जाती है उनको, लेकिन वो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं या प्रैक्टिकल जॉब है उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते. तो आप लोगों के साथ जो फंडामेंटल है वो ये है that we want you people to be as strong as the other professionals are in the corporate world. ठीक है. बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, आप तौफीक से और उससे सीमा से क्यों नहीं डिस्कस करते, आप उनसे डिस्कस किया करो अपना प्रॉब्लम. आई एम श्योर वो लोग बहुत हेल्पफुल है इस मामले में. ठीक है. ओके गाइस. ओके मैम. चलो ओके. अब हम बात करते हैं फाइनेंस की. क्यों पढ़ रहे हैं फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसका हमारे जॉब में क्या यूज है. बिकॉज मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि कई बार ना आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, व्हाट इज द यूज ऑफ, या फिर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन योर डे टू डे रूल्स. तो वहां पर आपका ये डिस्कशन काम आएगा. हाँ, तो अब मुझे बताओ आप लोग क्या समझते हो. Ma'am, it's financial management. So when it is management, it's all about planning, organizing, controlling, and directing. So controlling the economic and the finance, that is the financial management. Okay. Apurva. Yeah, ma'am, same as what Faria told. अच्छा है. कॉपी में क्या हुआ, आप पेपर में चीटिंग लिख के आ जाओगे. और मतलब सोचो same. कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, हमारे लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट. Because of course we are into management field. I mean, in future we'll be doing jobs, or our career will be in this kind of things only. So I think it's necessary for each management guy to learn about financial management, like the finance of the company, or whatever it is, hospital company. He should be involved in the budgets. Okay. And yeah. Okay.
I think technically we got one answer. We will be involved in budgets. For the think about it, guys. Think. Say for example, so okay, right now I'm doing job in HR management. I mean, in as an HR executive in some company. So we have given certain budgets for the recruitments. So we need to manage that thing. I mean, it's just an example of financial management. I mean, budgets and all. Okay. Okay, I give you one situation. Okay. Suppose you want to start a hospital. Hospital, definitely you have to have money for that, lot of money, correct? Okay. Now, from where you will get the money? Of course, from the services which we provide. Investors, okay. Yeah, of course. Bank loan. Bank loan, very good. From father. Very good, your own money, very good. And savings. And what? Savings. Savings, okay. Okay. Shareholders and traders. Very good. Shareholders and traders, very good. Very nice. Very good answer. Excellent answer. So when we say that whenever we are starting any organization, any business, of course we would need money for that, right? Now, you will be having a lot of options from where you can opt or from where you can take the money and invest into business, right? But now you will again evaluate. क्या इवैल्यूएट करेंगे कि भैया हम जो पैसा ले रहे हैं हम कहाँ से लें? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना पापा से लिया पैसा और बैंक से लिया पैसा, दोनों में क्या फर्क है? Ma'am, for father you don't have to pay any interest, and for bank you have to pay. Excellent, bang on. तो अपना जो पैसा लगा रहे हैं हम लोग घर वाला, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन बैंक का आपको इंटरेस्ट देना है. और क्या डिफरेंस होगा? Ma'am, for bank there is lot of procedures and terms and conditions you have to follow. Right. So आपका टाइम पीरियड भी काफी लगेगा उसको पैसे को एक्चुअली लाने का, करेक्ट? और सोचो, साइज सोचो, साइज ऑफ द कैपिटल. अपूर्वा, hello? Size of the capital as in? Size of the capital, that means amount, value. Okay, value of the money. Value of the money as in the total amount. From bank, you can get a bigger amount, right? But from your own house, your own family would have a limitation in terms of giving finance to you, correct? Yes. अगर मुझे 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए, क्या 100 करोड़ मुझे मिल जाएगा घर से? नहीं मिलेगा ना. तो ऑफ कोर्स हमको थोड़ा सा बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद फ्रेया ने बहुत अच्छा बोला कि हम लोगों को जो पैसा है वो बहुत सारे सोर्सेज जैसे बताया. वन ऑफ द सोर्सेज शेयर होल्डर्स. आप क्या करते हो? पब्लिक को अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ निकालते हो. ठीक है? आईपीओ, गाइस वन मोमेंट. हाँ,
Okay. So when we say the amount of the capital that we can get from bank loan is higher as compared to your invested capital, your own savings. Now next is like शेयर होल्डर, जहां पे हम क्या करते हैं, एक आईपीओ लॉन्च करते हैं। आईपीओ लॉन्च करते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि हमारी कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करें, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि लोग जो है हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें और उसके बदले में कंपनी में पैसा आए। जो पैसा वो आएगा दैट इज थ्रू आईपीओ, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये कब करती है कंपनी? जब बहुत बड़े बड़े अमाउंट का कैपिटल चाहिए होता है, एक बड़े लेवल का बिजनेस होता है, तो पब्लिक को वो इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करती है, जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको शेयर होल्डर से पैसा लेना है, नहीं लेना है, कितना लेना है, कितना बैंक से लेना है, ये सारे जितने भी डिसीजंस है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर ये भी होता है कि जैसे जब आपने बिजनेस अपना रन करना शुरू किया, आपके पास प्रॉफिट जनरेट होने शुरू हुए, अब फॉर एग्जांपल आपको अब जो पैसा आपके पास आया, आपको वो इन्वेस्ट करना है ना। आप ये देखोगे कि भाई वो पैसा हम इस प्रोजेक्ट में डालें या उस प्रोजेक्ट में डालें, या प्रोजेक्ट ए में डालें, बी में डालें, सी में डालें। तो वो सारे जितना डिसीजन है कि कौन से प्रोजेक्ट से मुझे ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या ज्यादा अर्निंग्स मिलेंगी, वो जो है मेरा डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो जाएगा। बिकॉज वहां पे हम लोग ये प्लान करेंगे कि भैया कहाँ से मुझे रिटर्न बेटर आने के प्रोस्पेक्ट्स है, जिससे बेटर रिटर्न मिल रहा है, कम टाइम में मिल रहा है, सिक्योर्ड मिल रहा है ना, एज पर माई रिस्क एपिटाइट मिल रहा है। भैया मेरे को, मुझे लगता है कि मेरे को 8% का रिटर्न चाहिए, तो मेरे को कौन से प्रोजेक्ट से वो पैसा मिलेगा, ये सारे डिसीजंस भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है अभी प्रिया? यस मैम, यस। अपूर्वा आपको भी बच्चे? यस मैम। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी देखते हैं, देखो अब जब हम, आपने अगर घर में देखा हो, ये मुझे बताना आप लोग, ठीक है, घर में आप लोग पढ़ते हो, है ना, आपकी फीस सबमिट होती है। आपकी फीस जब सबमिट करनी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल 50,000 पे करना है या 1 लाख पे करना है, तो क्या वो पापा कहाँ से लाते हैं वो पैसे? मानो 1 लाख पे करना है आपको, हर हर 2 महीने में 1 लाख फीस है आपकी। ऑल्दो यहाँ नहीं है, यहाँ तो बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं। मैं आपका फॉर एग्जांपल मैंने चार बना के दिया कि हर दूसरे महीने आपको 1 लाख रुपीज सबमिट करने पड़ते हैं कॉलेज में। तो पापा कहाँ से लाते हैं पैसे वो? बैंक से, जो सेविंग्स बैंक की से, हुई है उससे। बैंक से, वेरी गुड। क्योंकि 2 लाख रुपीज कैश में घर पे नहीं रखा हुआ, हाँ। है ना। अच्छा, अब बताओ, सब्जी लेने जाते हैं तो पैसे कहाँ से लाते हैं? वॉलेट में होते हैं उतने, दूध लेने जाते हैं तो? सेम वॉलेट में होते हैं। घर में कोई मैरिज आती है, गोल्ड खरीदना है तो उसके लिए तो वही बैंक से या फिर बॉन्ड्स जो बनाए होते कार्ड हैं से, क्रेडिट कार्ड। कार्ड हाँ, से या क्रेडिट बैंक से, कार्ड। है ना। मतलब आपने वो कैश मनी अपने पास नहीं रखी हुई, करेक्ट। अब यस। यहाँ से भी हमें लर्निंग मिलती है, प्रैक्टिस है ये जो, यही प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। अब ये प्रैक्टिस कैसे हुई कि भाई जो थोड़ा सा पैसा है, छोटे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा है, वो तो मैंने अपने पास घर पे रखा है, वॉलेट में रखा है ना, डे टू डे यूज के लिए। लेकिन जो बड़ी रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा है, वो मैंने घर पे डे टू डे के लिए नहीं रखा, वो मैंने बैंक में रखा है। क्यों रखा है बैंक में? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड, और उस पे इंटरेस्ट में कुछ, वेरी गुड, वेरी नाइस। वो पैसा जब यूज में आएगा तभी निकालेंगे, जब यूज में नहीं है तब तक उसके ऊपर बैंक का इंटरेस्ट लेंगे, यस। है ना। अब यही प्रैक्टिस कंपनीज में होती है। जैसे कंपनीज को अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए वो अपने पास डे टू डे ऑपरेशंस के लिए एक लिक्विड मनी रखते हैं कि भाई फटाफट फटाफट यहाँ से हम यूज कर लेंगे पैसा। लेकिन पता चले जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है मेरी कंपनी की 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, उस 1 लाख रुपए में स्टेशनरी भी आ जाती है,
छोटा मोटा फ्यूल और ये सब चीजें भर जाते हैं, 1 लाख रुपए बहुत है। अब अगर मैं वो पैसा 1 लाख ना करके अपने पास लिक्विड मनी जिसको बोलते हैं, जो फटाफट यूज हो सकती है, अगर मैं 50,000 रखती हूँ तो क्या होगा? अगर 50,000 रुपीज रखती हूँ इंस्टेड ऑफ 1 लाख तो क्या होगा? Ma'am, can you repeat? Okay. I have a requirement of 1 lakh rupees per month for the working capital, but I am keeping only 50,000. What will happen? पैसे कम पड़ जाएंगे और क्या? कम पड़ जाएंगे तो क्या होगा? We will not able to expense, I mean, मतलब वो expense जो भी होगा हाँ, उसके एक्सपेंस back नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? services नहीं provide कर पाएंगे। क्या होगा? Requirements complete नहीं होगा, like रिक्वायरमेंट we cannot meet. रिक्वायरमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट? जो भी daily requirements है जो हमें मतलब use आती है to provide the services, we won't be able to provide services. हाँ, तो what will happen then? So debt में चली जाएगी बैंक। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Debt, डेट हो जाएंगे। हाँ मतलब वही, अगर हम लोग नहीं रख रहे हैं तो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो विल नॉट गेट इनफ मनी। Will not get enough money. थोड़ा सा और टेक्निकल सोचने की कोशिश करो कि पैसा हमने कम रखा हुआ है और हम अपनी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेशंस जो डे टू डे रन नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा, बिकॉज मेरा काम रुक जाएगा। हाँ करेक्ट। अब जैसे हाँ फॉर एग्जांपल आज जो है मेरी मशीन के अंदर ना वो डलना था, ऑयल डलना था, ठीक है, और ऑयल नहीं डला, मशीन रुक गई, काम नहीं चला आज क्योंकि पैसे उसमें रखे नहीं हुए थे लिक्विड कैश में डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जिसकी वजह से मशीनें आज रुक गई। और मेरी 10 मशीनें थी, उस 10 मशीनों और हर मशीन पे 10 लेबर काम, यानी कि मेरी 100 लेबर खाली बैठी है हाँ और आज प्रोडक्शन नहीं होगी। इसका मतलब अल्टीमेटली मेरा बिजनेस उस दिन स्टॉप हो जाएगा। मतलब तब तक मैं चलो अरेंज कर भी दिया, फॉर एग्जांपल हाफ डे में अरेंज हुए वो पैसे, फिर फ्यूल आया और हाफ डे में डला, तो आधा दिन तो खराब, आधे दिन की मेरी लेबर कॉस्ट भी खड़ी हो गई, आधे दिन की मेरी प्रोडक्शन जीरो हो गई, और उस आधे दिन के लिए मेरा पूरा ओवरऑल काम डिस्टर्ब हुआ। और फिर जब मैं पैसे अरेंज करने जा रही हूँ, हो सकता है मुझे फटाफट से बैंक से छोटा सा लोन लेना पड़े और वो महंगा लेना पड़े। मतलब उस टाइम आप ये भी नहीं सोच पा रहे मैं कहाँ से लाऊं। करेक्ट है? करेक्ट है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। हुआ। चलो इसको हम Yes. और इजी तरीके से भी देखते हैं कि जैसे घर में अगर मतलब नॉर्मल फैमिलीज के पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जेब में 1,000 रुपए रखे हैं, है ना, और 1,000 रुपए रखे हैं और आपने भी सब्जी लेने गए, आपको 200 रुपए की सब्जी आ जाती है आपकी वेजिटेबल्स फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं 800 फिर भी स्पेयर रखते हो। अब वहां जाके कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आपको वो मतलब उस दिन फॉर एग्जाम्पल पूरा 1 हफ्ते से सोचो मार्केट में स्टॉक ही नहीं आ रहा, तो जो आया है वो इतना महंगा आ रहा है कि जितनी जो चीज आपको 200 की पड़ती थी वो 1,000 की पड़ गई पापा को। तो जब 1,000 की पड़ गई तो बाकी खर्चों के लिए जो पैसे जेब में कम पड़ गए, है ना, कम पड़ गए ना, पूरे Yes, ma'am. वेजिटेबल्स में ही लग गए। तो उसकी वजह से भी जो बाकी की चीजें आए वो नहीं आई, घर में डिस्टरबेंस हो गया। करेक्ट। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी आपकी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो वर्किंग कैपिटल अगर हम कम रखते हैं तो मेरे ऑपरेशन स्टॉप हो जाते हैं, मेरा काम स्टॉप हो जाता है, मेरे को लॉस होता है,
मेरा डिमांड पूरी नहीं कर पाती, हो सकता है आज मेरे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी थी जो रुक गई, जिसकी वजह से मेरा कस्टमर लूज हो गया, या फिर कस्टमर जो है वो उसने मेरे से आगे की डील मना कर दी। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने ज्यादा रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में 1 लाख रुपीज पर मंथ की रिक्वायरमेंट होती थी वर्किंग कैपिटल की, मगर आपने 2 लाख रखे हुए हैं, तो क्या होगा? 2 लाख रखिए तो क्या होगा? सोच के बताओ। अगर 2 लाख रखे हैं तो क्या होगा? पूर्वा, प्रिया, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, तो फिर एकदम शांत हो गई। अगर हमने ज्यादा पैसे अपने पास कैश में रखे हुए हैं, फिर क्या होगा? अननेसेसरी रखे हुए हैं। Ma'am, wastage, or we can use that in something else. समथिंग We can एल्स। manage that properly. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब ये है कि हमने अगर उसको एक्स्ट्रा रखा हुआ है अपने पास, एक तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ सकता था वो लूज कर दिया हमने। अगर बैंक में रखे थे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes. है ना? अब अपने बैंक में नहीं रखे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और उसके साथ साथ हमने उसको ओपनली, अब हो सकता है ज्यादा पैसा रखने की वजह से ज्यादा ही एक्स्ट्रा फालतू खर्चा भी हो जाए, एक की जगह 1.25 लाख हो जाए, है ना? लिक्विड मनी रखी हुई है, और जहां से पैसा लेके मैंने रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बैंक से उठाया हुआ है वो कैपिटल पर मंथ के हिसाब से, और वो भी मैंने एक्स्ट्रा उठा लिया, तो वहां पे लोन भी का इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो कितना पैसा हमें डे टू डे के लिए चाहिए, कितना रखा होना चाहिए, ये सारा चेक्स, ये सारी मेजरमेंट, इवैल्यूएशंस, ये भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वन ऑफ द डिसीजन में होती है, जहां आप ये चेक करते हो कि हमारे पास कितना आइडल वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने शेयर So, होल्ड। ma'am, this बोलो। comes under investment decision. नहीं, इट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल डिसीजन। Okay, okay. ठीक है। देन वी हैव, क्योंकि जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा यूज होता है ना, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। Yes, ma'am. ठीक है। देन मूविंग ऑन, आपको फिर एक बार ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपने शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया कि आपके बिजनेस में आए और आपके बिजनेस में पैसा लगाए और उसके बदले में शेयर्स लें, तो वो जब शेयर्स लेंगे तो शेयर्स के बदले में भी आप कुछ दोगे उनको, है ना? Yes, शेयर्स। ma'am. Profit. We'll say how, like हाँ, some percent of the profit. हाँ, परसेंट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को। अब कितना डिविडेंड देना चाहिए और कितना वापस बिजनेस में रखना चाहिए, ये भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेना होता है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर हुआ, ठीक है, और आपके यहाँ तो अगर आप कैपिटल देखोगे तो 10,000 शेयर, 1 लाख शेयर, ऐसे ऐसे इश्यू होते हैं। ठीक है। तो 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 शेयर्स की बात करी, 100 रुपए पर शेयर का डिविडेंड जनरेट हुआ, जिसमें 500 हो गए, है ना? 500 रुपए हो गए। अब वो 500 रुपए मुझे एज अ डिविडेंड बांट देने हैं अपने शेयर होल्डर्स में, या बिजनेस में वापस लगाने हैं, ये डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। अब आप कहोगे कि मैम, शेयर होल्डर्स आपको वो पैसा आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, आप क्यों वो पैसा जो है आप अपना छोड़ेंगे, क्यों कहेंगे आपको कि भैया आप अपने बिजनेस में लगा लो दोबारा से, वो मतलब प्रॉफिट भी लगा लो, ऐसा क्यों होगा? So that next time they get a proper or good amount of dividend. गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मतलब ये 500 और अगला 500 दोनों मिला के 1000 मिल जाए। Yes, ma'am. पर एक बात सोच के देखो कि मेरे को इस महीने 500 मिल रहे थे, अगले महीने भी 500 मिल रहे हैं, तो मेरे को अगले महीने 1000 मिल जाएंगे 500 की जगह, पर है तो मेरा ही अमाउंट ना, तो वो पिछले महीने मैंने 500 अपना छोड़ दूंगी मैं। ऐसा शेयर होल्डर्स आराम से कर देंगे? No, ma'am. अमाउंट तो तब हुआ ना जब उस पर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, जब है ही आपका 500 पर मंथ,
dividend might increase the other month. Okay, even if it would increase, but the value of 500 will remain same, na? Rest of the dividend, rest of the month, dividend may go up, which may be 700. So 700 plus 500, 1200. But this 500, which you are leaving for this particular month, why a shareholder would be interested in not receiving a dividend for this month? Think about it. Technical answer है, technical सोच है इसमें, बस सोच के बताओ. अपूर्वा, हो तो नहीं गए हम, या सो गए, या हम सोच रहे हैं? Ma'am, shareholders basically love to invest only, and they want to take the whole amount together, and then so they know that that 500 is theirs only wherever it is. So Okay. They know कि 500 उसके वहीं पर सेव्ड है ना? इसलिए वो लोग कह रहे कोई बात नहीं, अगले महीने भी दे दो, चलेगा, ऐसा? no, ma'am, they'll take that 500 rupees. They will take that 500 rupees. नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे दो ही दो, हमें 500 हमारे बन गए, दे ही दो, ऐसा? Yes, ma'am. Sure. Or you have some other answer also? Sure, ma'am. Sure. Okay. I'll give you answer now. देखो, वो पैसा जो 500 का डिविडेंड तैयार हो गया है शेयर होल्डर का, वो उसे ले या ना ले, ये डिपेंड करेगा कि अगर तो वो पैसा लेते हैं शेयर होल्डर्स, है ना, और वो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स हैं भाई, शेयर होल्डर्स हमेशा पैसा इन्वेस्ट करने में ही इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? अगर वो उसको मार्केट में लगाते हैं तो उनको रिटर्न मिलता है उस पर 1%, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और ये कंपनी में जब लगाने पर आप ये उस पर रिटर्न आ रहा है फॉर एग्जांपल 3%, तो कंपनी बोलेंगे ना कि भैया मेरा मैक्सिमम पैसा आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मतलब मेरे जो डिविडेंड्स भी हो गए हैं तैयार, वो भी आप इन्वेस्ट करो, इसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, करेक्ट? तो they will be ready to invest that dividend also in that company. Yes, ma'am. समझ में आया? अगर उनको मार्केट में बेटर रिटर्न मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो नहीं पसंद करेंगे उस कंपनी में लगाना। फॉर एग्जांपल उस कंपनी से रिटर्न मिलता है उनको 1%, वही वाले डिविडेंड डालने में, और बाहर से रिटर्न मिलता है 5%, तो ऑब्वियसली दे वुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग दैट मनी आउटसाइड, करेक्ट? यस मैम। तो आप उस डिविडेंड को वापस बिजनेस में लगाओगे या उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है, तो इसलिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पड़ जाता है। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड।
सो इस तरह के जितने भी डिसीजन है, मैं आपको इसको टेक्निकल डेफिनेशन भी दूंगी इसकी, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी करा के दूंगी, बट इस तरह के जो डिसीजन हैं, इस तरह की जो यू नो व्हाट डू यू से आउटपुट है, ये सब तभी निकल के आता है व्हेन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay, that is why we study financial management. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब मैं आपको ना थोड़ा सा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग्स और ये सब भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग के एग्जाम में आए तो आप उसको कवर कर लो। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस में भी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। मींस जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो अप्लाई करके उसको कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ताकि मैक्सिमम उसका बेनिफिट निकल के आए, ये डिसाइड करना ही फाइनेंस के अंदर आ जाता है। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब आप फाइनेंशियल फाइनेंस के अंदर पढ़ते हो। इसको हम इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड। मींस जब जब जरूरत पड़े उस टाइम तक हमारे पास वो फाइनेंस अवेलेबल हो, उसके प्रोविजंस बनाना ही फाइनेंस है। देन फाइनेंस फंक्शन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन of business, utilization of money in business concerns, and the concept of finance includes capital, funds, money and amount. ठीक है, clear? जी मैम। ओके, अब फाइनल अकाउंट्स क्या है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपके तीन तरह की स्टेटमेंट बनती हैं, एक आपकी ट्रेडिंग, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हमारा वो होता है जो आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दिखाता है या फैक्ट्री की इनकम दिखाता है। मतलब जो भी फैक्ट्री में हुए हुए खर्चे और फायदे हैं, उसके बाद मेरा टोटल नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो बेसिकली आपके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट्स बनाते हो, है ना, या आप बुक्स बनाते हो, या आप ग्लास बनाते हो, तो ग्लास बनाने के लिए जो मशीन यूज हो रही है, जो लेबर यूज हो रहा है, और जो जिस जहां पर वो प्रोडक्शन हो रही है वहां के खर्चे, वहां की लाइट्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी तरह का वहां पे खर्चा हो रहा है, तो वो सारे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरा आ जाता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि जो भी मेरे ऑफिस से जुड़े खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, भाई आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसकी मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, उसको डिलीवर भी तो कराना पड़ेगा, उसका अकाउंट्स भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक ऑफिस भी तो बना के रखना पड़ेगा, उस ऑफिस के भी तो खर्चे आएंगे। तो वो सारे जितने भी खर्चे आएंगे मेरे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ठीक है, आपको सेल्स वाले को सैलरीज भी देनी पड़ेगी, कमीशन भी देना पड़ेगा, आपको अपने कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई इंटरेस्ट कहीं से आ रहा हो, कुछ बेनिफिट आ रहा हो, है ना। देन आपको हो सकता है कहीं से कुछ कमीशन आ रहा हो, है ना। ये सारे जो मतलब उसका जो बही खाता प्लस माइनस करने के बाद मुझे नेट में क्या मिला, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा। तीसरी मेरी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का एक डिवीजन हो जाता है कि भाई ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरे लाइबिलिटीज हैं, जिसमें मेरा प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट से मेरी कैपिटल बढ़ी या कम हुई, वो सब चीजें हम लोग उसमें देखते हैं, और ये समझ में आ जाता है कि फाइनली मेरी बिजनेस की क्या पोजीशन है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है थोड़ा? अभी हम इसको और देखेंगे, करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। डोंट वरी मैम। लाइबिलिटीज इज liability is anything which is a kind of burden or it is to be paid by the business। जैसे आपका क्रेडिटर्स हो गया, आपने क्रेडिट पे माल लिया, क्रेडिट पे पैसा लिया, उधार लिया, कोई आपने लोन लिया बैंक से, या आपके शेयर होल्डर्स का पैसा जो आपको वापस करना होगा जब आपका कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, है ना। या आप अगर बिजनेस शट डाउन कर रहे हो तो आप पहले शेयर होल्डर्स के जितने भी लाइबिलिटीज हैं उसको चुकाओगे, आपने कोई लोन ले रखा है बैंक से उसको चुकाओगे, आपने मार्केट से कुछ पैसा उठा के आप उसको चुकाओगे, है ना। आपके कोई एक्सपेंसेस थे जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट था पूरे साल का,
1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और आपने 12,000 देना तो आपने 10,000 दिया, तो अब जब आप अपना ऑफिस छोड़ोगे, बिजनेस बंद करोगे, तो जो रिमेनिंग 2,000 है उस साल में, तो वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, है ना? यस मैम, यस। है ना? तो हाँ, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। और एसेट्स क्या होती है? जिससे आपको फर्दर बिजनेस को रन करने में, ग्रो करने में हेल्प मिले। जैसे कि आपका स्टॉक है, आपको स्टॉक से आप माल बनाओगे, माल बना के आप आगे बेचोगे, या आपके डेटर्स है, आपको कहीं से पैसा आना है, वो पैसा आएगा और आपने उसको फिर बिजनेस में लगाओगे तो आपकी ग्रोथ होगी। आपके कैश हो गया, या आपके फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, जितने भी ये आपके एसेट्स हैं, ये सब आपको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट? जी। पोजीशन के लिए अच्छे रहते हैं। अब इसको मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलती हूँ कि जब अच्छे बच्चे निकलते हैं माँ बाप के, तो दे आर लाइक दी एसेट्स। और अगर जब वो खराब निकल आते हैं, किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं, या किसी गलत ट्रैक पे चल रहे, दे आर काइंड ऑफ लाइबिलिटीज, क्योंकि पेरेंट्स को उनके प्रॉब्लम्स या उनको भी उस टाइम तक भी पालना पड़ता है जब तक वो, उनको स्टैंड हो जाना चाहिए था पैरों पे, है ना? तो माँ बाप को यस तो मैम, यस मैम। हमेशा वो मतलब आगे के लिए वो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। पर अच्छे बच्चे रहेंगे तो माँ बाप के लिए और फैमिली के लिए वो बिजनेस एसेट्स बन के रहेंगे, है ना? ये जस्ट ओके मैम। इसी लेमैन बेसिक लैंग्वेज में बोला जाता है। ऑल्दो पेरेंट्स के लिए बच्चे कभी भी लाइबिलिटी नहीं होते, ऑब्वियसली पेरेंट्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं हमेशा ही। पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक टाइम के बाद माँ बाप बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, है ना? पेरेंट्स की भी तो एक एज के बाद इनकम, रिटायर भी होते हैं, इनकम भी कम होती है, बॉडी के अंदर जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। तो उस टाइम पर उनके जो बच्चे रहते हैं वही उनका हाथ थाम लेते हैं ना, करेक्ट? यस मैम। So at that point of time, they are like the assets for the company. Okay? जी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। भाई फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं बिजनेस के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो who will read all these 4 points for me? मैम, आई रीड। हाँ, पढ़ो। Objectives of final account. The first one, they are prepared for the calculation of gross profit and net profit earned by the organization for the relevant period by presenting the statement of profit and loss. Second one, the balance sheet is prepared for providing the correct financial position of the company as on the date. Number three, these accounts use the bifurcation of direct expenses to obtain the gross profit and loss, and bifurcation in indirect expenses to ascertain the net profit and loss for the organization. Number four, these accounts through the balance sheet bifurcate the assets and liabilities as per the holding and usage periods of the same. Okay. Okay. So what you understood? Ma'am, that the main thing for financial accounts is that whatever the profits and the net profits that is earned by the organization, they are showed in the profit and loss account, Very like good. in the balance sheet. All the assets, the liabilities, everything is written, and by the calculation through journal ledger, that is showed. And Very good. next is the for balance sheet is like a short, the balance sheet is very small like that, वो तैयार होता है तो उसको हम लोग जल्दी से देख के समझ में आ जाता है अच्छा इतना liability है, that we divide and we see the main thing in the balance sheet. For journal and ledger it's so big, how much people will calculate and all, so balance sheet बहुत अच्छा होता है देखने के लिए, like it's very easy. And the third one is, ma'am, I did not understand what is the third one. Okay. Okay. And the fourth point? Fourth point is ma'am, I have to see the meaning of this word bifurcate. Bifurcate means division. Okay. Yes, ma'am. So then by using division of this assets and liabilities, as you said, that the balance sheet shows the division of the assets and liabilities as according to the periods, like of different time Right. and date is given.
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. सो इजी लैंग्वेज के लिए मैं आपको फर्स्ट समझा देती हूँ एक बार और से. फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि हम जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट लॉस है उस पर्टिकुलर ईयर का वो हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें ये बताएगा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है. बैलेंस शीट हमें ये बताएगी कि क्या करेक्ट पिक्चर है इस साल की, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ना. देन उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं. मतलब क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे ट्रेडिंग में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं. तो आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ज्यादा खर्चे आपको डायरेक्टली वाले महंगे पड़ रहे हैं या इनडायरेक्ट वाले पड़ रहे हैं, या इनडायरेक्ट वाला जो है डायरेक्ट का कितना प्रोपोर्शन है उसका. वो सब भी आप एनालाइज कर सकते हो थ्रू दीज अकाउंट्स. देन आपको बैलेंस शीट में आपको उस साल पे आपकी कितनी स्ट्रेंथ खड़ी हो गई, बैलेंस में एसेट्स कहाँ कितने आ रहे हैं, लायबिलिटीज कितनी आ रही हैं, किस टाइप के एसेट्स आ रहे हैं, किस टाइप की लायबिलिटीज आ रही हैं, क्या कोई इस बार ऐसा भी है जो इस साल का खर्चा आउटस्टैंडिंग है, मीन्स जो खड़ा हुआ है आपने पे करना था करा नहीं है, वो भी एट द एंड मेरा रिकॉर्ड हुआ है ना. तो वो सारी चीजें जितने भी हैं आपको फाइनल अकाउंट से समझ में आ जाती हैं. तो दैट इज व्हाई दैट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनल अकाउंट. क्लियर? पूरा Yes, समझ ma'am. में आया? मैम उसका माइक नहीं काम कर रही. अच्छा, इसका माइक काम नहीं कर रहा. ओके, ठीक है. अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे. भाई फाइनल अकाउंट इम्पोर्टेंट क्यों है उसके और उसके एडवांटेजेस. ठीक है. अच्छा, ये एक बार ठीक है, फिर आप पढ़ो उसको फिर. Ma'am, importance. As the size and the business of the organization grows, it becomes necessary for the management of the organization to take proper steps to maintain the growth of the organization, as well as creating appropriate internal control in the organization for the prevention of fraud and errors. It helps the management to find the possible weak areas of the entity and also identifying the major areas which need special attention. ओके, बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है साइज ग्रो होता है, ये मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसकी ग्रोथ को इंटरनल कंट्रोल के साथ प्रॉपरली मेंटेन करे, ताकि किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरह की रिकॉर्डिंग में कोई एरर्स ना हो, और हमारे क्या क्या वीक एरियाज है, मतलब किस तरह के खर्चे बढ़ रहे हैं, कोई हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, उन सब चीजों पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सके. ये हमें फाइनल अकाउंट से हेल्प मिलती है इसमें. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, Final accounts is the source for the external components like the shareholders and investors to study the status of the entity and entity's business. Based on the entity, the investors decide whether to invest their fund in the same business industry or not. ओके. Third one. ओके, सो फाइनल अकाउंट बेसिकली एक सोर्स है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के लिए, मींस बाहर वाले लोगों के लिए, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स है, वो ये देख पाते हैं कि आपकी कंपनी कैसी चल रही है. क्योंकि जो ये फाइनल अकाउंट हमारा तैयार होता है ना, वो तैयार होने के बाद पब्लिक को शो किया जाता है, मींस वो पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में और अलग अलग सोर्सेस में, ताकि उसकी जो फाइनल पिक्चर है वो पब्लिक को शो हो सके. As per governance also, as per the government law also, it compliance also, it is required to publish those papers. So जो आपकी फाइनल रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक किस्म का सोर्स बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, वो ये देखने के लिए कि क्या आपकी कंपनी में फर्दर पैसा लगाना चाहिए और या नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. It provides the authenticated information to the public, who is the judge for the company based on who the company's future lies. Ultimately, the company aims to satisfy its consumers. Final accounts provide just enough data and information to the users to access the worth of the entity. Okay. So as we said, like फाइनल अकाउंट एक ऐसी पिक्चर है जो पब्लिक को या पब्लिक को शो की जाती है, इन्वेस्टर्स को शो की जाती है. So it basically provides a authenticity of the information to the public. Means आपका जो इंफॉर्मेशन आप दिखा रहे हो, मतलब क्योंकि वो आपकी ऑडिटेड है, सीए से ऑडिट करवाई हुई है और गवर्नमेंट को शो की हुई है, पब्लिक को शो की हुई है,
तो वहीं से कहीं ना कहीं वो हम बता रहे हैं कि ये मेरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर किसी तरह का कोई झोल नहीं है, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके कंज्यूमर्स, आपके जो आउटसाइड जो आपकी कंपनी में के प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो लोग भी सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ भाई ये रियल पिक्चर ऑफ द बिजनेस हमें पता चल रही है, ठीक है। और जो भी मेरे यूजर्स हैं, जिनको भी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन समझने की जरूरत है, उनको उसकी उनको उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी रहता है ना, वो क्योंकि पब्लिक के लिए ही ये पैसा, ये फाइनेंशियल पिक्चर जो है वो शो की जा रही है ना। तो दैट इज व्हाई योर आउटसाइडर्स, इन्वेस्टर्स, योर कंज्यूमर्स, योर यूजर्स, दे विल आल्सो अल्टीमेटली बी सैटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अब Ma'am, आते हैं। importance can also come under advantages हाँ itself. हाँ हाँ, देखो मोरलेस सेम चीजें ही होती हैं, ठीक है। अब आप इसको एक बार एडवांटेजेस को एक बार अपने आप सेल्फ रीड करेंगे, एंड देन नाउ यू विल एक्सप्लेन वंस यू डू अ सेल्फ रीड, ठीक है। 5 मिनट इसको लो और 5 मिनट डिसएडवांटेजेस को पढ़ो, क्योंकि वैसे क्या होता है कि फाइनल अकाउंट के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन थ्योरी वाला आ जाएगा तो इसमें ये सारी चीजें जो हमने कवर की ये सब पूछ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो हमने नीड, इंपॉर्टेंस वो सब पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, वो मोर और लेस इसमें आपका इंक्लूड भी हो जाएगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा लिख सको, एग्जाम में आप उसको बाइफिकेट कर सको, इसलिए आपको ये इस फॉर्म में भी दिया गया है, ठीक है। सो यू हैव लाइक 5 मिनट्स, आप एक बार इसको सेल्फ रीड करेंगे, फिर मुझे बताएंगे एडवांटेजेस समझ में आए या नहीं आए, उसमें क्या समझ में आए, ठीक है। सो टोटल आई विल गिव यू 10 minutes. Your time starts now. Okay, ma'am. Ma'am, little bit niche.
Complete, ma'am. Okay, done. Easy. Yes, ma'am. ठीक है. ओके, सो आई गिव यू दी समरी. सो बेसिकली एडवांटेजेस जो है, मोटा मोटी अगर हम बात करें कि फाइनल अकाउंट जो है जिसमें आपको एक्यूरेसी मिलती है, इफेक्टिवनेस मिलती है अकाउंट्स की. आपको कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि भाई हमारी कोई इंफॉर्मेशन गलत डल गई है या कोई रेक्टिफिकेशन है, वो साथ साथ कर सकते हो. कोई एडजस्टमेंट है वो भी एट द एंड हो जाती है हमारी. ठीक है. दूसरा ये, क्योंकि हमारे बिजनेस का ये जो अकाउंट्स है इसमें इसका ऑडिट होता है, इसका प्रॉपर चेक होता है, तो डेफिनेटली फ्रॉड के चांसेस या मिस स्टेटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. दूसरा, इससे आपके बिजनेस की वैल्यूएशंस भी हो जाती हैं प्रॉपर्ली कि भाई कितनी वर्थ है हमारे इस बिजनेस की. राइट. तो ये एडवांटेजेस रहेंगे. डिसएडवांटेजेस में क्या रहता है, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पे ही बात करते हैं, तो जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई सेल्स, बहुत अच्छे सेल्स सेल्स टीम थी आपकी, वो आपके बिजनेस को छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लिया, डेफिनेटली उससे मेरी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेल्स जो वो लोग लाते थे, जो उनका कस्टमर रिलेशनशिप था वो इतना स्ट्रांग था कि वहां से वो रेपिटेटिव बिजनेस लाते थे. बट वो चीज हम अपने अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. करेक्ट. सो इस तरह के जो इंस्टांसेस हैं वो सब रिकॉर्ड नहीं होंगे. दूसरा, कुछ मिस स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जो हमारे कई बार ऑडिट में हम लोग नहीं पकड़ पाते. तीसरी बात, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है they are prepared by the individual, so जो एक उसमें पर्सनल जजमेंट है थोड़ा बहुत कि भाई कौन से मेथड से हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस रिकॉर्डिंग में इन्फ्लुएंस कर सकता है. दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, क्लियर? जी मैम. ठीक है. अब आप लोगों ने कभी बनाया है ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट? First year, ma'am. First year we have done. ठीक है. आप एक बार, ओके, बट अपूर्वा अपूर्वा माइट नॉट हैव डन इट, राइट? प्रिया, यस, प्रिया, राइट? प्रिया स्पीकिंग, करेक्ट? We have the same, ma'am. We are from the same class. अच्छा अच्छा, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था ये? Yes, ma'am. But तब तो सब कुछ MCQs था, तो that's why we did ये not आपको need किसने, this. मैंने पढ़ाया था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई क्लास ही नहीं हुआ है मैम. अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. अब ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है. ट्रेडिंग अकाउंट में आपको आपको मालूम नहीं होगा कि आपके जो फैक्ट्री में हुए हुए खर्चे हैं, तो एक बार इस फॉर्मेट को अपने हाथ से, यू हैव द पेन पेपर विथ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसको अपने हाथ से बनाओ अपने पास.
Done, ma'am. ओके, नाउ प्रिपेयर दिस आल्सो। दोनों का हो गया है ना, मतलब पूर्वा से बात नहीं हो रही तो पूर्वा यू कैन पुट इट इन चैट इन केस यू वांट। नेक्स्ट तैयार करेंगे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस। मैम थोड़ा नीचे। हो गया मैम। ओके, अच्छा, अब ये दो हमने अकाउंट्स बनाए हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे ना, नेचर देखोगे, ये सब फैक्ट्री में हुए वो है आपके। देखो ओपनिंग स्टॉक, आप परचेज जो मटेरियल परचेज करते हो, गुड्स परचेज करते हो, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस लेबर वगैरह को पैसा देते हो, है ना, लेबर को वेजेस देते हो, या आप फैक्ट्री में कोई लाइट लगा दी है, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब यहाँ पे आएगा। बाय सेल्स यानी कि जो आपने सेल किया, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, अब दोनों को ऐड करने के बाद अगर तो मेरा ये वाला पोर्शन ज्यादा है, टू वाली साइड ज्यादा है, यानी कि बेनिफिट वाली ज्यादा है, तो इसका मतलब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इस साइड का आ रहा था 20,000, इस साइड का आ रहा है मेरे पास, सॉरी, ये मेरे खर्चे हैं, टू ओपनिंग स्टॉक परचेज और ये डायरेक्ट, ये मेरे खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आ रहा है 20,000, और बाय सेल्स वाली साइड यानी कि बेनिफिट वाली साइड जो है मेरा
आ रहा है 18,000। इसका मतलब बेनिफिट वाली साइड आ रहा है फॉर एग्जांपल 22,000, सॉरी 20,000 मेरा लेफ्ट साइड पे और 22,000 मेरा राइट साइड पे। इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट है भाई। खर्चे 20 के थे, बेनिफिट 22 का हुआ, इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि नीचे टोटल हमें बराबर करना होता है तो 22,000 राइट साइड पे है, तो बचा हुआ 2,000 हम यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे 2,000, विच विल मेक दिस टोटल एज 22,000, क्योंकि जो बड़ा वाला अमाउंट है वो और नीचे आता है टोटल में। ये हम सम करेंगे तो ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया। Yes, ma'am. ऐसे ही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ये मेरे खर्चे हैं डेबिट वाली साइड पे ना, सैलरीज लेफ्ट साइड पे, जो टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंस, ये सारे खर्चे हैं, ये खर्चे हैं। और राइट वाली साइड पे बेनिफिट है। अब एक चीज और, जो ऊपर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो आप ना टू ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ मूव करेंगे एज माय बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस होता तो बाय ग्रॉस लॉस होता, तो यहाँ पर आ जाता टू ग्रॉस लॉस, मतलब ऊपर वाला जो है वो ट्रांसफर हो जाता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल फायदे और टोटल नुकसान का दोनों का टोटल देखते हैं। इसमें देखते हैं किसका बड़ा है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और फायदा कम है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस आए मेरे 50,000 और मेरा बेनिफिट आता है इसमें 48,000, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको 50,000 का लॉस है और 48,000 का प्रॉफिट है, तो मेरा क्या हुआ? इसका मतलब एक्चुअली में मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? Loss हुआ। हाँ, और नेट लॉस मेरा कितना हुआ? Ma'am, 50,000 and 48,000. हाँ हाँ, तो 4,000. No, 2,000. 2,000 इज माय नेट लॉस। ठीक है, और फिर वो लॉस मेरा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों बना के दी हुई है। एडजस्टमेंट तो नहीं है इसमें, इसमें एडजस्टमेंट भी है। क्वेश्चन मिल जाए। आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में किया था तो आप लोगों ने एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी? Yes, ma'am. All these were there in the syllabus, but then it was MCQ. Like because of COVID, it was all MCQs. So ledger and journal हम लोगों ने मतलब था ही नहीं, कैसे करते हैं, मतलब नहीं, we had to read the theory part. कोई बात नहीं। पर आप मुझे ये बताओ, आप लोगों ने एडजस्टमेंट मतलब आपको लास्ट टाइम अगर आपने खुद भी पढ़ी है तो एग्जाम में आई थी क्या? नहीं मैम, नहीं। ठीक है, ओके। चलो आप एक काम करो, पहले ना ये क्वेश्चन नोट डाउन करो अपने पास, पेन पेपर से, विद एडजस्टमेंट।
इतना तक हो गया मैम। ओके, एडजस्टमेंट देख लो एक बार। हो गया मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ, उसके बाद ना आप अपने आप एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, है ना। उसको इसको ही आप एटलीस्ट जो तीनों अकाउंट है अपने, है ना, उसमें डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, टोटल, ये सब चीजें। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं एडजस्टमेंट और बता देती हूँ कि हमारी स्टॉक जो 31 मार्च 2000 को इतना था, ठीक है, यानी कि 38,000 का मेरा स्टॉक था। 38,000 का स्टॉक जो है वो मेरा आएगा। ठीक है, उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन क्लोज 1 अप्रैल को 16,000 था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे, है ना। क्लोजिंग स्टॉक को हम देखेंगे कितना है, वो कैलकुलेट करके नीचे आएगा। अच्छा, उसके बाद वेजेस जो है वो 2,000 रुपए थे, एंड सैलरीज जो है 1,500 जो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब इस साल 2,000 और 1,500 के सैलरीज और 2,000 की वेजेस हम लोगों ने पे नहीं करी, जो मुझे करनी चाहिए थी, तो इसलिए उसके एडजस्टमेंट कर रहे हैं। देन ऐसे ही मेरा इंश्योरेंस है 150 का, जो प्रीपेड है, यानी कि इस साल मैंने पहले पे कर दिया, तो वो मेरी एसेट्स बन के रहेंगी। और डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी पे रहेगा वो 5%, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 10%। अब आप मुझे ये बताओ, आई एम नॉट श्योर अपूर्वा का क्या है उसमें, बिकॉज अपूर्वा की अंडरस्टैंडिंग कैसे बैठती है इसके अंदर। ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट, ये तीनों आप बना पाओगे क्या? एक बार अपने आप ट्राई करना चाहते हो? आंसर बिना देखे आप एक बार अपने आप ट्राई करके देखो कि हम इसमें से कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने इनकम है, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बाइफरकेट करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बैलेंस शीट में। आई कैन गिव यू 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, एटलीस्ट वो 20 मिनट आप अपने आप इन आइटम्स को अलग अलग, जो हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों जो मेरे कॉलम बनते हैं उसके अंदर डालने की कोशिश करो। आप जब हर पॉइंट को एक एक बार ट्राई करोगे ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो आई गिव यू 20 मिनट्स टू वर्क ऑन दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस। ठीक है, क्योंकि ये जब हम बना लेते हैं तो मेरा वो मोटा मोटा फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाएगा, तो इससे मेरा थ्योरी क्वेश्चन भी आता है तो भी मैं उसको कवर कर लूंगी। आगे जो आपके एनालिसिस आएंगे, रेशियो एनालिसिस और वो सारी चीजें, वो भी मेरी कवर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी फाइनल अकाउंट की।
जो कि आपके फाइनेंशियल पिक्चर बताती है बिजनेस की। ठीक है प्रिया? ओके फरिया? Okay, ma'am. Okay. हाँ, तो आई गिव यू 20 minutes here टू वर्क ऑन दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, सो दैट हम इसको डेबिट क्रेडिट जो है बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ? Yes, ma'am. ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट ठीक है, गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट बोथ ऑफ यू। मैम क्लोजिंग स्टॉक में क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो रहा है ना? ओके ओके ओके। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है ना। अब देखो आपको यहाँ दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो आप देखो ना यहाँ पे आपका कौन सा बैठ रहा है, लेस कौन सा है? 38,000, मैम मार्केट वैल्यू 20,000, तो हम लेस वाला ले रहे हैं 20,000। ठीक है, क्लियर? 20,000 लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वाई? क्योंकि दोनों में से जो लेस होता है ना वो लेते हैं। ठीक है, जी।
कहाँ तक पहुंचे अभी परिया? मैम आई वाज डूइंग देन सडनली आई गॉट स्टक, आई मीन अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या करूं। कोई बात नहीं, देखो इनको करने का एक तरीका मैं आपको बताऊं। जब आपको जब आपको कोई चीज एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैरेज आउटवर्ड पे स्टक हो गए, तो आप नेक्स्ट वाला आइटम वेजेस उसको पकड़ लो। फिर इसमें यही बेनिफिट है इस पूरी स्टेटमेंट में, जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो ना, अगर आपको एक समझ में नहीं आ रहा आप दूसरे को मूव कर जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो, देखो हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही, हम आपको समझाएंगे ही सारे पॉइंट, बट बिफोर दैट यू शुड ट्राई ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज, आई मीन आप जो, अगर आपकी ट्रांजैक्शंस बच रही है, रेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यू कैन ट्राई एट होम, यू हैव द होल डे विद यू। आप एक बार ना इसके साथ भी आप क्या नाम है, व्हाट डू यू कॉल, अपूर्वा के साथ भी एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना। ठीक है, आपस में एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना, कितना हो गया कितना नहीं हुआ, कहाँ हो सकता है एक दूसरे की हेल्प भी कर पाओ। उसके बाद जब मैं समझाऊंगी ना, ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी आइटम क्लियरली टू यू पीपल, बिकॉज इस पे अगर आपका एमसीक्यूज भी आता है कि ये क्या चीज होती है, इसका डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा या लाइबिलिटी में आएगा या कहाँ पर आएगा, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट बिफोर दैट यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, आप इसके सॉल्यूशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब आप घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके पास इसका आंसर रहेगा सामने। तो कभी कभी कुछ चीजें देख के भी समझ में आ जाती हैं, राइट? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोथ ऑफ यू। यस मैम। ले लिया? जी मैम। ओके, अब एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यस मैम, थोड़ा नीचे लाइक हाँ दैट। हाँ, ये दिखा रही हूँ। यस। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन आइटम। ठीक है, और आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको ये पूरा क्लियर भी हो जाएगा, तो आपका फाइनल अकाउंट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, जो मोरलेस सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपका ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, रिटेन अर्निंग से दो चार चीजें और ऐड ऑन हो जाएगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्लियर गाइस? ओके, जी मैम। ठीक है, चलो आई थिंक वी आर गुड टू वाइंड अप द क्लास टुडे। हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया आज। यस मैम। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। We'll meet in the next class then. यस मैम, थैंक यू Okay. मैम। Thank you, thank you.